Okay, all right. Welcome back to my channel. So, we have started solving simultaneous equations. In the previous video, you have seen that we have learned the Cramer's rules, like we have learned how to solve the simultaneous equation with the help of Cramer's rules. Before before I start the next practice set, I just wanted to recall the things. That is, there are four ways to solve simultaneous equations. Number first, elimination method. And number second, that is graphical method. Like with the help of graphs, we will solve the simultaneous equation. I know that this method is pending, and I promise that I will cover this at the end of this chapter. Okay. Now the third method is Cramer's rules that we have seen in the previous videos. Now the last method, that is substitution method. Okay, I hope the previous methods are pretty much clear to you. If you have any of the doubt, let me know in the comment section. I'll make sure to clear that. Okay, so without further delay, we will start the new chapter, that is solving the new practice sets. Okay, now practice set number 1.4. What is the first question? 2 upon x minus 3 upon y is equals to 15. And the second equation is 8 upon x plus 5 upon y is equals to 77. Okay, now this is given. Now why we are using this substitution method? Because in the previous method the linear equations was pretty much clear, like in that only there were no any fraction part. Okay, so first step is just copy the what is the given, copy as it is the equations. 2 upon x minus 3 upon y is equals to 15, और ये 8 upon x plus 5 upon y is equals to 77. ठीक है, it's given. Now अच्छा, when we observe these two equations you can find one common things कि यहाँ पे भी 1 upon x है, here also 1 upon x है, यहाँ पे भी 1 upon y है, और इधर भी 1 upon y है. और ये जो 1 upon x और ये 1 upon y है ना, ये थोड़ा हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इक्वेशन को सॉल्व करने में. तो एज यू नो, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसका सीधा हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, देखते मैंने क्या बोला अभी. नाउ लेट सो 1 upon x है ना, मैं इसको कोई और वेरिएबल में इसको स्टोर करता हूँ. जैसे 1 upon x है, मैं इसको m वैल्यू रखता हूँ, एंड जो 1 upon y है इसकी जगह पे मैं n सब्स्टिट्यूट करूँगा. ठीक है, इतना क्लियर है. नाउ सब्स्टिट्यूट वन अपॉन x is equals to m and 1 upon y is equals to n in above equations. ठीक है, अब 1 upon x की जगह पे क्या लिखना है हमको? m. तो 2 तो एज इट इज रहेगा. 1 upon x ये ऐसा है समझो. 2 upon x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 upon x को 2 इंटू 1 upon x. ठीक है, सेम 3 upon y है ना, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 upon y.
तो ये जो 1/x है इसकी जगह पे मैं m सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना क्लियर है। अब माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब ये 3/y है, इसको मैं कैसे लिखूँगा, 3 इंटू 1/y, तो 3 तो एज इट इज़ रहेगा। 1/y की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, n, ठीक है ना, इतना क्लियर है ना, इज इक्वल्स टू 15 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या है, 8/x है, इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे 8 इंटू 1/x, तो 8 को एज इट इज़, और 1/x क्या होता है, m, फिर बीच में प्लस है। अब नेक्स्ट क्या है, 5/y, इसको भी ऐसे लिखूँगा मैं 5 इंटू 1/y, तो 5 एज इट इज़ रहेगा, और 1/y की जगह पे मैं n सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 77। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब दो इक्वेशंस मिल गए हमारे को। अब इसको हम लोग चाहे तो जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो मेथड देखा था, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, उसका यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल का यूज़ करके कर सकते हैं। बट अब क्या है ना कि हम लोग ने क्रैमर्स रूल अभी फ्रेश देखा है, तो मैं उसी को यूज़ कर दूँ, ठीक है। तो वही पहली लाइन, कंपेयर simultaneous equations with, इसके साथ करेंगे ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इतना क्लियर है, ठीक है। अभी a1 अगर कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू क्या है, 2, b1 क्या मिलेगा यहाँ से हमको, -3, और c1 क्या मिल रहा है यहाँ पे, 15। a1 2, b1 -3 और c1 क्या मिला, 15, ठीक है। अब सेम a2, तो a2 क्या मिला, 8, b2 मिला हमको 5 और c2 आया अपना 77। ओके, इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्रैमर्स रूल में हम लोग क्या करते हैं, d dx dy x और y, तो पहला क्या आता है हमारा d फाइंड आउट करना, ठीक है। d का फॉर्मूला क्या रहता है, ये a1 a2 इसे लिख दो, और यहाँ पे b1 b2 लिख देने का, ठीक है। अब नाउ a1 a2 की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 8 और -3 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे, तो 2 इंटू 5 ये फॉर्मूले का माइनस, और ये आता आएगा 8 इंटू -3, ओके। तो 2 इंटू 5 या 10, और ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज़, और 8 3 था 24, माइनस है इसलिए इधर भी माइनस, तो 10 माइनस माइनस प्लस 24, तो d क्या मिला अपने को, 24 प्लस 10 दैट इज 34। इसको रेक्टेंगल में कर देंगे। अब हम लोग क्या निकालते हैं इसके बाद dx, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास x और y थोड़ी है, यहाँ पे m और n है, तो m है तो यहाँ पे m लिखेंगे, dm, ओके। अब ये पहले वाले की जगह पे c1 c2 लाने का, c1 c2, और सेकेंड कॉलम एज इट इज़, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे c1 c2 से, और सेकेंड कॉलम को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। अब c1 c2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आई, 15 और 77। अब b1 b2 क्या थी, -3 और 5। अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को, ठीक है। तो 15 इंटू 5, नाउ दिस इज फॉर्मूले का माइनस, और 77 इंटू -3। अब 15 इंटू 5 कितना होता है, 75, और ये हो गया फॉर्मूले का माइनस, और 77 इंटू 3, तो 3 से 21 का 1 2 कैरी, 21 और 2 23, तो ये क्या हुआ 231।
अभी इधर ही लिखते तो जगह नहीं है। 75 और ये माइनस में आएगा ना, क्योंकि 77 इंटू 3 21 231, और जो माइनस था वो एज इट इज़, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 75 प्लस 231, क्या है आंसर? 75 प्लस 231 इज इक्वल्स टू 306। देयरफॉर DM क्या मिला हमको? 306। इसको भी क्या कर देंगे? रेक्टेंगल कर देंगे। अब क्या निकालना है? DN, मतलब जो DY था ना, यहाँ पे क्या है? DN है। DN में क्या करते हैं? सेकेंड वाले को C1 C2 से रिप्लेस करते हैं, तो फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहेगा A1 A2 और ये C1 C2, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A1 A2 की वैल्यू क्या है? 2 और ये 8, और C1 C2 क्या था? 15 और 77, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इससे, इसको इससे। 2 इंटू 77, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और 8 इंटू 15 इज इक्वल्स टू, तो 77 टू जा कितना होता है? 154 में फॉर्मूले का माइनस, और 15 इंटू 8 120, 2 7 14, 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, तो 154 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 34। तो DN का वैल्यू क्या मिला हमारे को? 34। इसको रेक्टेंगल कर देंगे, ठीक है। DM और DN मिल गया। तो यहाँ से हम लोग M और N का वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, ठीक है। क्लियर। चलो अब M क्या होता है? DM अपॉन D, और N क्या रहता है? DN अपॉन D, ठीक है। DM कितना मिला था हमारे को? 306, और अपॉन में नीचे D की वैल्यू क्या आई थी? 34, ठीक है। अब 306 और 34, तो उसको पहले 2 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि मे बी 34 का टेबल नहीं मालूम है, तो 2 से पहले कैंसिल करते हैं हम लोग। 2 1 ज़ा 2, एक बचेगा, 2 7 ज़ा 14, ऊपर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे एक बच गया, 2 5 ज़ा 10, और ये 2 3 ज़ा 6। अब 17 और 153 17 के टेबल में आता है, 17 1 ज़ा 17, और 17 9 ज़ा 153 होते हैं M। तो हमको M क्या मिला? 9। N की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, तो DN हमको क्या मिला था? 34, और D तो वैसे ही 34 है, 34 1 ज़ा 34 1 ज़ा। फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ N एज 1। ओके, नाउ इतना हम लोग प्रीवियस मेथड में करते थे, क्रामर्स के रूल में, ठीक है। अब क्या हम लोग M और N का वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन को एक बार देखो, क्वेश्चन में क्या था अपना? 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15, मतलब क्वेश्चन में हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बट हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया? M और N। तो चलो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो M को हम लोग ने क्या पुट किया था? तो M इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स था, सेम। N की जगह पे हम लोग ने क्या पुट किया था? 1 अपॉन वाई, ठीक है। M कितना मिला? 9 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? x, तो x को यहाँ पे लेके आएंगे, और 9 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। अभी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबको रिवर्स करेंगे, तो 1 अपॉन एक्स का x हो गया, 9 अपॉन 1 था तो इसका रिवर्स क्या हो गया? 1 अपॉन 9, तो x मिला। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये था 1 अपॉन वाई। N क्या मिला? 1।
उसको भी 1 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर में 1 ही रहता है। अगेन हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, उसको रिवर्स करेंगे तो ये 1/y का हो गया y, और इसको रिवर्स करेंगे तो 1/1 का 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो x 1/9 मिला और y क्या मिला, 1। तो फाइनली x, y इज इक्वल्स टू 1/9, 1। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा डाउट रहेगा, हम लोग आगे और जब सम सॉल्व करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या करने का, जो भी फ्रैक्शन आता है उसको एक सब्स्टिट्यूट करने का उसकी जगह पे। ठीक है, कॉमन फाइंड आउट करना है। जैसे अभी हम लोग के इसमें 1/x पहली वाली इक्वेशन में भी था और दूसरी में भी था, इसलिए हम लोग ने 1/x को एक वेरिएबल के साथ हम लोग ने उसको पुट किया। नेक्स्ट 1/y पहली वाली इक्वेशन में भी था, दूसरे में भी था, तो कॉमन लेके उसको एक वेरिएबल पुट कर दिया, तो फिर हम लोग का आगे का सॉल्व करना इजी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। खाली 1/x है ना, अब ये वाला थोड़ा सा अलग है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन क्या दिया है, 10/x + y प्लस 2/x - y इज इक्वल्स टू 4। ये पहली इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 15/x + y माइनस 5/x - y इज इक्वल्स टू -2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं क्वेश्चन। 10/x + y प्लस 2/x - y इज इक्वल्स टू 4। ओके, या इट्स राइट। नेक्स्ट इज 15/x + y माइनस 5/x - y इज इक्वल्स टू -2। ओके, इतना क्लियर है। तो सॉल्यूशन, पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिख देते हैं, 10/x + y प्लस 2/x - y इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट है 15/x + y, ये था माइनस 5/x - y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये हमारा गिवन था। अब यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो अपने आप मालूम पड़ जाएंगे। अच्छा, ये क्या है, 10/x + y है ना। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 × 1/x + y, क्योंकि 1/x + y यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। सिमिलरली 1/x - y यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी अगर 2/x - y है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 1/x - y। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में ना वो, इसके लिए। अब क्योंकि ये और ये पार्ट दोनों इक्वेशन में है, तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, इसको तो अभी वही करेंगे। तो लेट 1/x + y को m, अब कोई ज़रूरी नहीं कि m और n ही देना है, आपकी मर्ज़ी, u v x y कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये नेक्स्ट क्या है, 1/x - y, और इसको हम लोग n पुट कर दें। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है ना, अब इसको लिखेंगे 10, और 1/x + y के वैल्यू हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, m + 2, और 1/x - y को हम लोगों ने क्या पुट किया है, n, और यहाँ पे इक्वल टू 4। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा है 15m - 5n इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गई। अगेन इसको चाहे तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, चाहो तो हम लोग क्रामर्स रूल से भी कर सकते हैं, बट अगेन मुझे तो क्रामर रूल इजी लगता है, तो आई विल प्रिफर दिस क्रामर्स रूल, बट यू कैन ऑल्सो प्रिफर दैट एलिमिनेशन ऑल्सो। जिसको जो भी इजी लगे वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है। अब कंपेयर करेंगे, क्रामर्स रूल के लिए हम लोग को यही लिखना पड़ता है, कंपेयर simultaneous
इक्वेशंस विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसके साथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, अब अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको a1 का वैल्यू क्या मिला 10 और b1 क्या आ रहा है यहाँ से 2 और c1 की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे c1 इज 4। ठीक है, नाउ a2 क्या है 15, b2 क्या मिल रहा है हमारे को -5 और c2 मिला -2। ठीक है ना, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिला। अब क्रामर के इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आती है कि d dx और dy फाइंड आउट करो। ठीक है ना, तो पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे d की वैल्यू। ठीक है, तो d क्या बोलता है a1 a2 b1 b2। ठीक है, a1 और a2 की वैल्यू क्या थी 10 15, a1 a2 मिला और b1 b2 क्या था 2 और -5। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे नेक्स्ट ब्रैकेट 10 इंटू -5 और ये है हमारा फॉर्मूले का माइनस 15 इंटू 2। तो एक बार चेक कर लेंगे कि बराबर लिखे है कि नहीं 10 इंटू -5 और 15 इंटू 2। ओके, ठीक है, तो 10 इंटू 10 5 का 50 होता है माइनस एज इट इज़ और ये माइनस 15 टू जा 30। तो -50 -30 कितना हुआ -80। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को डी मिल गया। अब क्योंकि हम लोग ने एम और एन लिया था इसलिए डी एम और डी एन लेंगे। ठीक है ना, नाउ डी एम, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग A1 A2 ये जो कॉलम है इसको C1 C2 से रिप्लेस कर देते हैं और इस B1 B2 को एज इट इज़ लिखने का। ठीक है ना, अब C1 C2 के वैल्यू क्या मिली थे हमारे को 4 और -2। ठीक है, और B1 B2 क्या था 2 -5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू -5 ये फॉर्मूले का माइनस, फिर -2 इंटू 2 ना 4 इंटू -5 विच इज़ -20। ये रहेगा हमारा फॉर्मूले का माइनस और ये 2 2 से 4। ठीक है, -20 माइनस माइनस क्या हो गया +4 एज इट इज़। तो -20 +4 तो हमको डी एम की वैल्यू क्या मिली -16। इसको भी कर देंगे रेक्टेंगल। ठीक है, डी हो गया डी एम हो गया। अब डी एन की बारी। डी एन कैसे फाइंड आउट करते हैं A1 A2 C1 C2। ठीक है, अब A1 और A2 क्या था अपने पास 10 15 10 15। C1 C2 क्या हम लोगों ने क्या था हमारे पास 4 -2। ठीक है, 4 -2 और 10 15। ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 इंटू -2 फॉर्मूले का माइनस 15 इंटू 4। ठीक है, नाउ 10 टू ज़ा -20 कि इधर माइनस इसलिए माइनस 15 4 ज़ा 15 4 ज़ा 15 4 ज़ा 60 60। ठीक है, नाउ -60 -20 क्या हो गया -80। इसको कर देंगे रेक्टेंगल। ठीक है, तो डी मिल गया डी एम भी मिल गया और डी एन भी मिल गया।
तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना रहता है लास्ट में, m और n। तो m क्या था, dm अपॉन डी होता है, और n dn अपॉन डी। एक्चुअल में ना हमको फाइंड आउट ये करना होता है, dm और d की वैल्यू इससे मिलती है। तो dm क्या मिला, -16, और d कितना है, -80। माइनस माइनस कैंसिल, 16 वन 60 और 16 5 80 होता है। देयरफॉर m क्या मिला हमको, 1/5। ठीक है, इसको रेक्टेंगल कर लेते हैं, n की वैल्यू निकालना है ना। तो dn की वैल्यू क्या मिला हमको, -80, और d क्या है, -80। माइनस माइनस कैंसिल, 80 वन 80, 80 वन 80। तो फाइनली n भी मिला हमको 1। अब क्योंकि हमको यहाँ पे m और n तो फाइंड आउट करना नहीं था, हमारे जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हमको, x और y के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नाउ m की वैल्यू क्या है, 1/x + y। ठीक है, सिमिलरली n की वैल्यू क्या है, तो 1/x - y। हम लोग ने ये सब्स्टिट्यूट किया था ना ऊपर, 1/x + y को m किया था और 1/x - y को n। तो m की वैल्यू क्या है, 1/5, और ये 1/x + y एज इट इज़। ठीक है, यहाँ भी n क्या मिला, 1, और ये 1/x - y। इसकी भी कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो 1/5 = 1/x + y। अब हम लोग को क्या चाहिए, x + y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, 1/x + y की नहीं करनी। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको रिवर्स करते हैं। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में करते हैं, जो डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको रिवर्स कर दो, x + y = 5। इतना क्लियर है। अगर इसको मैं रिवर्स करूँगा तो x + y ऊपर आ गया और 1/5 का 5 हो गया। सेम इसका रिवर्स करेंगे तो 1/x - y का x - y हो जाएगा, और 1/1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ से दो इक्वेशंस मिल गए हमको। अब क्या करना है, क्योंकि लास्ट सम में तो हम लोग को इतना करने पर आंसर आ गया, बट इस सम में तो हम लोग को एक और इक्वेशंस मिल गई। बट अगर अपन इक्वेशंस को अगर देखेंगे ना क्लियरली, तो अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। अगर एक बार x का वैल्यू मिल गया तो y का वैल्यू तो फटाक से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग इक्वेशन नंबर देते हैं, उसको एक इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ठीक है, अब एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्यों कह रहे हैं मालूम पड़ गया ना, क्योंकि हम लोग को लास्ट सम में x और y की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई थी, बट इन दिस सम we are getting the value of x and y in the form of equations. So for that reason we have to do this, the addition of equation. So adding equation number 1 and equation number 2. ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपनी, x + y = 5 था, और नीचे क्या था, x - y = 1। ठीक है, इतना क्लियर है। ऐड करना है तो कोई टेंशन नहीं, साइन चेंज करने का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहता ना, एडिशन में बेस्ट ऑपरेशन इन इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, -y + y कैंसिल हो गया, x और x क्या हो गया, 2x। यहाँ से 5 + 1 6। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6 एज इट इज़। मैंने कितनी बार बोला हूँ कि जब भी =2 के लेफ़्ट साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अगर राइट साइड में शिफ्ट होगा तो वो डिवीजन में कन्वर्ट होगा, अगर एडिशन में है तो राइट में जाके सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 2 है, अगर इसको मैं यहाँ पे =2 के राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो वो डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे हमको x क्या मिला, 3,
ठीक है। चलो फाइनली x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू 1 या 2 कोई भी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो y भी मिल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या इक्वेशन नंबर 1 हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x क्या मिला 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 था। नाउ यहाँ पे हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उधर ये 5 एज इट इज़ रहेगा। मैं भी ऊपर बताया कि अगर यहाँ पे क्या है प्लस है, 3 किस में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 3 के साथ प्लस साइन है। अगर इक्वल टू के उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है ना। अगर सेम, अगर ये +5 था, अगर राइट से लेफ्ट में आता है तो +5 का क्या बन जाएगा -5, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन में। सिमिलरली डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को y की वैल्यू क्या मिलेंगी, 5 - 3 विच इज़ 2। तो वही लास्ट स्टेप अपनी कि x, y 3, 2, ये है हमारी फाइनल इक्वेशन। इसको यहाँ से रेक्टेंगल कर दिया मैंने, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, if you feel this channels and the video from this channel is one person is helping for you, I just request you to share with your classmates, with your relatives, so that they also can take advantage of this, ठीक है। one more thing, if you think, you can press the like button and subscribe button also, ठीक है। that's it for today, thank you so much।